भाग्य के लिए सारा महिमा आदर अपने प्रिय परमेश्वर को देना चाहूंगा। I got this privilege to share the word of God in this 2017. वर्ष 2017 में मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का यह सुअवसर मिला। This is God's grace. यह परमेश्वर का अनुग्रह है And thank God that God has given a gifted, talented person, Reverend Nikhil sir, for interpreting the message from English to Hindi. और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने गुड़ी अपने दास को रेवरेंड निखिल को दिया है, जो कि वचन का अनुवाद अंग्रेजी भाषा से हिंदी में करेंगे। Praise God. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह यीशु के अनुपम नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। Whenever we come to the Lord, we expect something from Him. जब भी हम परमेश्वर के शरणों में आते हैं, उससे बड़ी बातों की अपेक्षा करते हैं। And today I want to share something from a familiar passage. और एक बहुत ही सुपरिचित परिच्छेद से कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। We know the Bible is given to everybody in this world. हम जानते हैं बाइबल इस दुनिया में सबको दिया गया। But some people believe and somebody they do not believe. लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। And those who believe, this is an instruction and a blessing for those who believe. लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए ना ही केवल निर्देशन है, परंतु आशीष का जरिया भी है। And when we read and believe, we are blessed people. और जब हम इसे सुनते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं। And it's a great gift from our beloved God. यह प्रिय प्रेमी परमेश्वर से एक बड़ा वरदान है। From all the books we get instructions and guidance and everything. सारी किताबों से हमें निर्देशन, हमें मार्गदर्शन, हमें शिक्षाएं मिलती है। When we want to do the ministry, we will get examples after examples and encouraging words from all the books. जब हम सेवकाई करना चाहते हैं, तमाम किताबों से प्रोत्साहन के वचन हमें मिलते हैं। But now I want to give some instructions and the guidance from Acts of Apostles. लेकिन अब मैं प्रेरितों काम पुस्तक के द्वारा आपको कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ बातें देना चाहूँगा। I love this book. इस बुक से मुझे प्रेम है। Because there is a reason for that statement. और उस कथन के पीछे एक कारण है। If a person want to do the ministry, all the instructions are there. यदि कोई व्यक्ति सेवकाई करना चाहता है, उसके लिए सारे निर्देश दिए गए हैं। From chapter 1 to the last chapter, all the instructions and guidance are there for a person who is not going to launch out for the ministry. पहले अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय तक जो व्यक्ति सेवकाई में जाना चाहता है, उसके लिए सारे नियम कानून दे दिए गए हैं। So I always request the brothers and sisters, those who are going to do the ministry, to read the Acts of Apostles so that we will be successful ministers. जो भी भाई और बहन सेवकाई में जाना चाहते हैं, मैं सदैव उनसे विनती करता हूं कि आप प्रेरितों काम पुस्तक को पढ़ें, ताकि जब आप सेवकाई में हो, आप सफल हो पाएं। From that book we can understand why we have to do the ministry and how can we do the ministry even with money and without money. And even without our proper homes and everything, that means the shelter, we can do the ministry. और इस किताब के द्वारा इस बात को हम समझ सकते हैं, पैसे हैं नहीं हैं, घर है या नहीं है, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप सेवकाई कर सकते हैं। Somebody asked me while I was teaching, said how without money how can we do the ministry? तो किसी ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया, सर आप पढ़ा रहे हैं, ये बताइए बगैर पैसों के सेवकाई कैसे करेंगे? And we can give thanks to the Lord if we do not have gold and silver in our pockets. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यदि सोना चांदी हमारे जेब में नहीं है। So that they did the ministry, apostles did the ministry. प्रेरितों ने यह सेवकाई की। Thank God that they said that we don't have gold and silver in our pockets, but we have something, and with that they did the ministry. और परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है यीशु का नाम हम तुम्हें देते हैं। Even if there is not even a single believer, we can go to a new place and do the ministry. भले ही आपके पास एक विश्वासी भी क्यों ना हो, आप नए स्थान में जाकर वहां सेवकाई शुरू कर सकते हैं। Even we are persecuted and we are in prison and we are in some such kind of we are facing
such kind of things, we can do the ministry. यदि हम बंदीगृह में हैं, हम सताव में हैं, हम ऐसी परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, हम सेवकाई कर सकते हैं। When the adverse situation comes, we can pray earnestly to the God, and God will hear our prayers, and we can do the ministry. जब हम विषम परिस्थितियों से होकर के जाते हैं, हम बड़ी तीव्रता के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं और वो हमें सेवकाई में आगे बढ़ाएगा। Sometimes we may feel that we are alone, nobody is there to encourage us, we can do the ministry. कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो अकेले हैं, कोई हमें प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। ऐसी अवस्था में भी आप सेवकाई कर सकते हैं। Married people can do the ministry, and unmarried people can do the ministry. विवाहित लोग सेवकाई कर सकते हैं, अविवाहित लोग सेवकाई कर सकते हैं। Even if there is no temple, no church, we can do the ministry in the riverside. भले कोई मंदिर नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, आप नदी के किनारे सेवकाई कर सकते हैं। So everything is there in these books. तो प्रेरितों काम पुस्तक में तमाम बातें दी गई So है। before you go to start the ministry, please read this book. तो इससे पहले आप जाकर अपनी सेवकाई को शुरू करें, कृपया कर इस पुस्तक को आप पढ़ें And practice those things which is written very carefully for us only, for the ministers. और सेवकाई सेवकों के लिए विशेष तौर पे बड़ी सतर्कता के साथ जो कुछ लिखा है उसको आप अपने जीवन में लागू करें। And I want to give you some lessons for the Christian workers. और मसीही सेवकों के लिए मैं कुछ नियम आपको देना चाहूंगा। I told you that from the first chapter itself, some lessons are there. मैंने आपको पहले ही कह दिया, पहले अध्याय से ही आपके लिए पाठ वहां पर मिलेंगे। If we just share 3-4 lessons only, don't think that these are the only lessons in the book of Acts. यदि हम आपको केवल 3-4 ऐसे पाठों को सिखाते हैं, ये ना सोचे कि पूरे प्रेरितों काम में केवल 3 या 4 पाठ हैं। Full of instructions. निर्देशों से भरा पड़ा है And the result of prayer is there. प्रार्थना का नतीजा भी आपको दिखेगा। It will encourage us to kneel down before the Lord. यह हमें प्रोत्साहित करेगा परमेश्वर के सामने हम घुटनों में आ जाएं। And when we go to see the people, before that, when we see God, there will be result in that journey. लोगों से मिलने से पहले जब हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, आपकी उस यात्रा का प्रतिफल आपको मिलेगा। God will speak to us while we are sleeping, and while we are sitting, and while we are meditating, God will speak to us. या हम सो रहे हो या जाग रहे हो या हम मनन कर रहे हो, परमेश्वर हमसे बातें करेगा। And God will invite us to do the ministry in such places. ऐसी अवस्था में परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए आमंत्रित करेगा। A wonderful treasure we have. एक अद्भुत खजाना हमारे पास है। Please read that. कृपया कर आप इसे पढ़ें। In chapter 5, so many things are written there. 5वें अध्याय में आप देखेंगे बहुत सी बातें लिखी हुई है। We can see first sin recorded in the sin of the church recorded in this book. हम देख सकते कलीसिया का पहला पाप वहां दर्ज किया गया है। Why it is written? Because it may happen in the churches also. ऐसा क्यों यहाँ लिखा गया? क्योंकि आज कलीसियाओं में हो सकता है ऐसा होता हो। When we are going to be the leaders, and we have to act accordingly what is written very clearly in that chapter. जब हम अगुए बन जाएंगे, जो कुछ इस अध्याय में लिखा है बड़ी सतर्कता से हमें उसे मानना है। And the lesson we have is that before we take action, and we must know that through the divine wisdom and the Holy Spirit, that is such problem is there in the church. उसमें पाठ यही है कि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इससे पहले कि आप कुछ कदम उठाएं, आप कलीसिया में क्या हो रहा है जान ले, बूझ ले। Another lesson is that we cannot even make compromise with the sin. दूसरा आप पाठ वहां देख सकते हैं कि हम पाप के साथ समझौता नहीं कर सकते। If we are compromising, God will not even make any compromise. यदि हम समझौता करेंगे तो परमेश्वर कोई समझौता नहीं करेगा। If God is not taking any action all on a sudden, it is because of His plan. We cannot even question. यदि परमेश्वर तात्कालीन कोई कदम नहीं उठाता है, यह उसकी योजना के निमित्त है, हम उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। God has chosen people with some criteria. परमेश्वर ने किसी मापदंड के मुताबिक लोगों का चुनाव किया है। Very clearly written there. बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात वहां लिखी है। If we want to select leaders, there is some qualifications must be there. यदि आप अगुओं को चुनना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए। We cannot even call all the people and say that if you do this ministry and you do that, then we cannot do that. आप सारे लोगों को बुलाकर ये नहीं कह सकते तुम ये सेवकाई करो, तुम वो सेवकाई करो, आप ऐसा नहीं कर सकते। And for choosing a person also, there is some rules and regulations are there. एक व्यक्ति के चुनाव के लिए भी कुछ कायदे कानून दिए गए हैं। To minister in the church, we need the good reputation, full of Holy Spirit, full of wisdom. It is written very clearly. कलीसिया में सेवकाई के लिए ऐसा लिखा गया है कि आपका मान सम्मान होना चाहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा होनी चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। Why some problems are there in the church? Because we are not ready to follow these instructions. और कलीसिया में समस्याएं क्यों है? क्योंकि आज हम इन नियमों
नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। So in chapter 5, it is written that the sin is mentioned there. और 5वें अध्याय में आप देखते हैं पाप के बारे में किया गया है, Power of the early church, और प्राथमिक कलीसिया या प्राचीन कलीसिया की सामर्थ, persecution, उनका सताव, arrest, उनका गिरफ्तार किया जाना, miracles, चमत्कार, and escape of the apostles, प्रेरितों का बचाया जाना, continue the ministry, सेवकाई का लगातार आगे बढ़ना, and so on. So many things are also. और बहुत सी बातें वहां दी गई है। So I want to say very clearly that it is God's plan that we are going through this book of Acts. बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूंगा, ये तो परमेश्वर की योजना ही है कि हम इस प्रेरितों काम पुस्तक को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। One lesson I want to tell you that. एक पाठ मैं आपको बताना चाहूंगा। Do not think that only one lesson is there. ये ना सोचे केवल एक ही पाठ यहाँ है। For example, I want to give you one example. उदाहरण के लिए मैं आपको एक नमूना देना चाहूंगा। Whenever God is working, जब कभी परमेश्वर कार्य करता है, the devil also will also be at work. शैतान भी वहां कार्य में लगा रहेगा। Do not think that devil is working so it is not God's plan. कभी ये ना सोचिए शैतान काम कर रहा है मतलब परमेश्वर की योजना नहीं है। Whenever God is working, surely expect that the devil also will work. जब कभी परमेश्वर काम कर रहा है, इस बात की आप अपेक्षा करें कि शैतान भी अब काम करेगा। The context we know, I do not want to explain that. संदर्भ को हम जानते हैं, उसकी व्याख्या करना नहीं चाहूंगा। The church was flourishing like anything. कलीसिया संपन्न हो रही थी, And at that time, devil was trying to work from inside. और उस समय आप देखते हैं शैतान कलीसिया के अंदर से काम करना शुरू करता है। Mainly two kinds of attack will be there. मुख्यतः दो प्रकार के आक्रमण आप देखेंगे, From outside and also from inside. बाहर से और अंदर से। Suppose somebody is coming to attack from outside, we all will go together and will try to resist. मान लीजिए बाहर से कोई आक्रमण करेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें रोकें। But the devil is working from inside. लेकिन शैतान जब अंदर से काम करता है, It is very difficult to understand. ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। Understand means we need the divine wisdom for that. ध्यान रखें, हमें दैवी बुद्धि की आवश्यकता है उसके लिए। If the leaders, if you, we, myself and you do not have the divine wisdom, यदि आपके पास, अगुओं के पास, मेरे पास यह दैवी बुद्धि नहीं है, we won't be able to understand the devil's work from inside. हम जो अंदर से कलीसिया के अंदर शैतान काम करता है उसके कार्य को बूझ नहीं पाएंगे। Devil will not shake all the time. शैतान उस समय हिलकर नहीं बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। Suppose devil is shaking, we can understand that okay, this is the work of कई devil. बार शैतान जब हिलता है तो हम समझ जाते हैं वो इसके अंदर घुसा है, ये है। Devil is very clever. शैतान बहुत ही चालाक है। Yeah. Very good word, chalak. You're very clever. बहुत ही चालाक है। So we must be more clever than that तो devil. हमें उस शैतान से भी ज्यादा चालाक होना है। That's why the word of God says that be filled with the Holy Spirit. इसलिए वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। So from inside makes it difficult to understand. तो अंदर से जब ये काम करता है, समझना मुश्किल हो जाता है। More harmful than the attack of from outside. और ये अंदर से होने वाला आक्रमण बाहर से होने वाले आक्रमण से ज्यादा घातक, खतरनाक है। You see some small murmuring came there. मान लीजिए कुड़कुड़ाना, जैसे यहाँ वचन में दिया है, उनके बीच में आ गया, That is from inside only. और वो कुड़कुड़ाना जो है अंदर से ही है, Among the believers. विश्वासियों के बीच में। If there is any murmuring and if there is any complaint and if there is anything which is going on, that surely you come to know that it is not devil. यदि कोई कुड़कुड़ाता है, यदि कोई शिकायत करता है और आपको सुनाई पड़ता है ऐसा हो रहा है, जान लें ये शैतान की तरफ से है। I told some in the class sometimes that no need to go to any prophet that whether I am the son of God or son of Satan. और मैंने कक्षा में कहा कि जाकर किसी भविष्यवक्ता के पास ना जाए और पूछे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ या शैतान का संतान हूँ। No need to go to anybody. किसी के पास ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं। You examine yourself. आप अपने आप को जांचें। If you said a lie यदि आपने एक झूठ बोला and you are the son of, आप किसके पुत्र पुत्री हैं? thank God that we know the scripture. और धन्यवाद, कम से कम वचन मालूम है हमें। No need to go that okay, I am the son of God and I am telling that. ऐसा ना बोले मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ और झूठ भी बोल रहा हूँ। If we are committing sin, यदि हम पाप करते हैं,
We are the children of Satan. Double it is written there. बाइबल में लिखा है हम शैतान के संतान हैं। Oh God, we want to commit sin and we want to be your children. This is not possible. आप ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर हम पाप भी करना चाहते हैं, तेरे संतान भी बनना चाहते हैं, नहीं होगा। You see, sometimes it is a good example. I want to tell you that. एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। The helmet is to protect our head. और जो हेलमेट आप देखते हैं वो हमारे सिर की सुरक्षा के लिए होता है। And head in that sense means the mind, eyes, ear, and the upper portion. आपका दिमाग, आंख, कान, नाक, मतलब आपके ऊपरी भाग। When we are riding the motorcycle with the helmet, it will be safe. जब हम हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल चलाते हैं हम सुरक्षित रहेंगे, But it should be unbreakable. लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो तोड़ा ना जा सके। But some people are using that helmet. लेकिन कुछ लोग तो हेलमेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, You might have noticed that आप देखे होंगे इन दिनों में they will remove the helmet and keep it in the handle and drive the vehicle. वो हेलमेट निकाल करके हैंडल में लगा करके गाड़ी चलाते रहते हैं। Some Christians are also like that. कुछ मसीही लोग भी ऐसा करते हैं। And the weapons are given to us, और हथियार हमको दिए गए हैं and the helmet also is there. और हेलमेट भी हमको दिया गया है। And they will keep it in the handle and they will drive. वो हैंडल में उसको डाल लेंगे और चलाते रहेंगे। That's why problem is there. इसीलिए समस्या आती है। Devil is attacking through mind शैतान दिमाग के द्वारा आक्रमण करता है, and through eyes, आंखों के द्वारा आक्रमण करता है, ear, कानों के द्वारा, mouth, मुंह के द्वारा, because we are keeping the helmet in the hand. क्योंकि हमने हेलमेट को हैंडल में लगा दिया है। When we see police people जब हम पुलिस लोग को देखते हैं to escape from 1,000 rupees fine, और 1000 रुपए के उस जुर्माने से बचने के लिए we keep it there. हम उसे लगा लेते हैं। And when we come to the church, जब हम कलीसिया में आते हैं to show to the pastors and everything, we keep it there. पासवानों को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम लगा करके आते हैं। It is from the scripture I say. वचन में लिखा है, आपको बता रहा हूँ। Don't keep the helmet on the handle. और आप हेलमेट को हैंडल में फंसा के ना रखें। Examine ourselves अपने आप को जांचें whether we are the children of God or children of devil. कि हम परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की संतान To हैं। know that, read the scripture उस बात को जानना है, वचन पढ़ो, and be under the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अंदर बने रहो। We are going to be great leaders. आप बड़े अगुवे बनने वाले हैं। Don't think that we can always have ordinary people like ये that. ना सोचो आप हमेशा औसतन व्यक्ति के समान जिएंगे। You are going to be pastors. आप पासवान बनेंगे। When you go to the church, you must understand that who is working under the control of devil जब आप- and who is working under the control of God. कलीसिया में जाएंगे, आप देखकर इस बात को जान ले कौन शैतान के अधीन काम कर रहा है, कौन परमेश्वर के अधीन काम कर रहा है। Sometimes we cannot declare that you devil. कई बार आप किसी को शैतान बोल के नहीं बुला सकते। Jesus has the guts to tell even Peter that a devil go from here. केवल प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत थी जो शैतान जो पतरस के अंदर था उसे देखकर बोल पाया, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। God has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है। So whenever God is at work, तो जब भी परमेश्वर कार्य में होता है, God's work is going on, परमेश्वर का कार्य ऊपर जा रहा है, devil also will be there. शैतान भी वहां काम करेगा। Don't fear that. अब भयभीत ना Oh, हो। devil is coming, so I cannot even pray. ओ शैतान आ रहा है, अब तो मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता। When you take a decision that I will pray, जब आप एक निर्णय लेंगे कि मैं प्रार्थना करूंगा, and immediately headache will be there. तुरंत आपको सिर दर्द हो जाएगा। Tell devil, शैतान से कहें, even if there's a headache, भले सिर दर्द हो, I will lay down on the cot and I will pray there. मैं अपने बिछौने पर लेटा रहूंगा लेकिन प्रार्थना नहीं करना छोड़ूंगा नहीं। Immediately you will receive the answer from God. तुरंत आप परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त It will करेंगे, be gone. चला जाएगा। And after that you can pray उस- for 1 hour. उसके बाद आप 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। Before you go for to do the ministry, इससे पहले कि आप सेवकाई करने जाएं, devil will try to attack you. शैतान आप पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। Depression, disappointment, deviation, so many things are there. निराशा, हताशा, पथ भ्रष्ट करना, ये सारी बातें आपके जीवन में आएगी। So by the time you understand that God is going to use you more, उस समय आप इस बात को समझ लें, परमेश्वर आपको और अधिक इस्तेमाल करने वाला है। if any disappointment is coming and trying to attack you in so many ways, यदि कोई हताशा आपके जीवन में आकर के आपको निराश करने का प्रयास करे, give thanks to the Lord. आप परमेश्वर के हाथों में उसे दे दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, You give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दें। Know that God is going to use me. ध्यान रखिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाला है, That's why these things are happening in my life. इसलिए ये बातें मेरे जीवन में हो रही है। Devil doesn't like that you are going to do the ministry. शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप सेवकाई में जाएं। Devil try to put you in prison. शैतान आपको बंदी गृह में डालने का प्रयास करेगा। It happened there.
वहां पर आप देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। And behind all the persecution, devil is working. इन सारे सताव के पीछे शैतान का हाथ था। I do not say that all the sickness is because of devil. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी बीमारियां शैतान की वजह से आती है। If you are taking some unnecessary things, that will be there. The sickness will be there. यदि आप अनावश्यक वस्तुओं को खाते हैं, लेते हैं, बीमारी आपके पास रहेगी। But if you are doing the ministry and at that time persecution is there, behind the persecution, devil is working. और यदि आप सेवकाई में हैं, वहां पर सताव खड़ा होता है, उस सताव के पीछे शैतान का हाथ है। But God knows that. लेकिन परमेश्वर को ये मालूम है। Another lesson. दूसरा पाठ, Without the permission of God, devil cannot touch you. परमेश्वर की अनुमति के बगैर शैतान आपको स्पर्श नहीं कर सकता, Because God will give permission. क्योंकि परमेश्वर आपको उसको अनुमति देगा, Otherwise, devil cannot touch you. अन्यथा वो आपको छू नहीं सकता। Devil can threaten you, शैतान आपको घुड़की दे सकता है open the eyes wider, और आपकी आंख को बड़ा करके देखें, and he can sometimes roar like a lion. कई बार वो चाहे तो सिंह के समान चिंघाड़ सकता है। Don't fear. भयभीत ना हो। Inside the mind you say praise the Lord. अपने मन के अंदर आप कहें परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, Because God is going to use you. क्योंकि शैतान आपको इस्तेमाल करने वाला है। Believe that. विश्वास करें। When the threatening words are coming, जब धमकी भरी घुड़कियां आपके पास पहुंचे, slowly say hallelujah. praise धीरे the से कहें हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, Lord. Because God is going to going to use you. क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। So in the prison you don't say that I am the prison, I cannot do the ministry. बंदीगृह में आप ये ना कहें कि अरे मैं तो बंदीगृह के अंदर बैठा हूं, मैं सेवकाई क्या करूंगा। At least you can sing you will sing a song like this. आप वहां पर कम से कम एक गीत ऐसे गा सकते हैं। So when we sing song, जब हम गीतों को गाते हैं, devil will think that okay, now I put in prison that he should not even talk. शैतान सोचेगा अरे मैं इसको बंदीगृह में डाला हूं कि ये मुंह भी ना खोले, But they are singing. लेकिन अब तो वो गीत गा रहे हैं। And when they are just they are binding with the chain, जब वो बेड़ियों से उन्हें बांध करके रखे हैं, I did not bring that drum set and everything. That will be like that very good drum set. उन दिनों में ड्रम सेट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसा बोले कि इसे पीटते हैं जो ड्रम सेट की आवाज आती है, Devil will be ashamed. शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। And the third lesson. तीसरा पार्ट, It is always safe to trust God when we are doing His will. जब हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उस पर भरोसा रखना अच्छी बात है। When persecution comes, we trust God. जब सताव आता है, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। And when we are doing the will of God, we trust God. जब परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। And we have to trust the Lord and Lord alone. हमें केवल प्रभु और प्रभु पर ही भरोसा रखना है। I want to tell you that if you expect any person to help us, आपको कहना चाहूंगा, यदि आप किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी मदद करे, there is a limit for them to help us. तो उनकी मदद के लिए उनकी शक्ति, उनकी क्षमता की एक सीमित सीमा है। Yes, there is a seema hai. But लेकिन there is no limit for God to help us. लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी मदद करने की कोई सीमा नहीं। You might have noticed some doctors outside their clinic. आप देखे होंगे कई डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक के बाहर जब होते हैं, Visiting time 10 to 2. लिखा है मिलने का समय 10 से 2 बजे तक। After 2 o'clock, if you break the door, he will not come out. 2 के बाद यदि आप दरवाजा तोड़ भी डालें, वो बाहर नहीं आएंगे। But लेकिन for our beloved God, हमारे प्रिय परमेश्वर के लिए you go to midnight, आप आधी रात को उसके पास जाएं, kneel down. घुटने में आए, Oh God, परमेश्वर I need healing. मुझे चंगाई की आवश्यकता He है, will heal you. वो आपको चंगाई देगा। You know why I am here now? आपको पता है कि यहाँ पर मैं क्यों खड़ा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। That day I gave the testimony. उस दिन मैंने गवाही दिया, I thought that I will be in the hospital. मुझे लगा मैं तो अस्पताल पहुंचूंगा I ही। told my beloved God, मैंने अपने प्रिय परमेश्वर से कहा, and now you have to be a miracle. अब तो आपको चमत्कार करना ही है। I prayed. मैंने प्रार्थना किया, Nobody, even my wife did not know that. कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी मालूम नहीं चला। The next day she told me that why you did not wake me. अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे उठाए क्यों नहीं? I said that you can give me only hot water. That's all. मैंने कहा कि आप उठकर केवल गर्म पानी दोगे, और क्या? You cannot heal me. आप मुझे चंगाई नहीं कर दे सकते। I cried to the Lord. मैंने परमेश्वर के सामने पुकारा, He healed me. उसने मुझे चंगाई दी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is here to help you. परमेश्वर यहाँ है कि वो आपको चंगाई दे। You trust God. आप परमेश्वर का भरोसा रखें। And another lesson I want to tell you that एक और पाठ आपको देना चाहूंगा। to be effective ministers we need the power of the Holy Spirit. सेवकाई में प्रभावशाली होने के लिए आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। You can see all these things in chapter 5 only. ये सारी बातें आप 5वें अध्याय में देख सकते हैं। But without the power of the Holy Spirit we cannot do
we cannot do the ministry. लेकिन पवित्र आत्मा की मदद के बगैर आप सेवकाई नहीं कर सकते। That is from the first chapter we can see ये that. पहले अध्याय से ही हम देख सकते हैं। So God is now making all the plans. तो परमेश्वर सारी योजनाओं को बना रहा है। So when we come to know that this is the plan of तो God, जब हम इस बात को जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की योजना है, we will automatically give glory to Him. हम अपने आप ही परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर देंगे। No need to pursue that to say hallelujah, no need to tell. इस प्रकार से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। A very good lesson I learned, I will tell you that. एक बहुत ही अच्छा पाठ मैंने सीखा, आपको And बताऊंगा। one day God told, the Lord told Peter to go to a place. एक दिन की बात है, परमेश्वर ने पतरस से कहा कि एक स्थान पर जाए। And he did not tell that my aim is such and such thing. उसने ये नहीं कहा कि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य ये बातों को पूरा करना है। He went to Lydda. वो लुद्दा चला गया And he healed Aeneas who was palsied for 8 years. और अनियास जो 8 वर्ष से बीमार था उसे चंगा कर दिया। Oh, thank God that everybody gave thanks to the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सबने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। I did a mistake now. Very sorry. एक गलती कर दी है, माफ करेंगे। God performed a miracle through Peter. पतरस के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया। He did not perform miracle. पतरस ने चमत्कार नहीं किया, God performed a miracle through Peter. परमेश्वर ने चमत्कार किया पतरस के द्वारा। Then he went to Lystra. फिर वो लुस्त्रा, Sorry. The place. If anybody remember that after Lydda why he went? लुद्दा के बाद वो कहाँ गया, किसी को याद आता है? I know. मुझे मालूम है, I know. मुझे मालूम है। Thank God. धन्यवाद परमेश्वर का। जोपा गया, Raised one woman. वहां पर एक स्त्री को जिंदा किया। I will tell you that. मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत Then he करो। went to the housetop of Simon the tanner. सिमोन जो चमड़े का काम करता था उसके घर पर गया, He received a vision. वहां उसे दर्शन मिला। You know all these things. हमें इन सारी बातों के बारे में मालूम He है। sent Peter. The Lord sent Peter. परमेश्वर ने पतरस को भेजा। And through the vision, the Lord told him to go to the house of Cornelius. दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने उसे कहा कि कुरनेलियुस के घर भी जाओ। I believe that suppose God was telling him when he was in Jerusalem, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उससे बोला होगा जब वो यरूशलेम में है, and he will consult with all the apostles. और फिर सारे प्रेरितों से वो चर्चा करेगा, विमर्श करेगा। Apostles will say that don't go there and eat with him. प्रेरित लोग बोलेंगे वहां जाकर उसके साथ खाना मत खाओ। This great apostle will say. ये बड़े प्रेरित उससे ऐसा कहेंगे। God did not tell at that time. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। And he went there. फिर वो वहां गया, Preached the word of God. परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। And all the household of Cornelius and the household, the neighbors, they got this were saved. और कुरनेलियुस उसका पूरा घराना उद्धार पा लिया, And took water baptism. पानी का बपतिस्मा भी लिया। And after that, they were filled with the Holy Spirit. उसके पश्चात वो पवित्र आत्मा से भर गए। Peter came back. पतरस वापस आया The Jerusalem great leaders came to know that. और यरूशलेम के बड़े बड़े अगुओं को ये बात मालूम चल गई। They said that, hey, you went and ate with that the Cornelius. उन्होंने कहा, अरे तुम वहां जाकर कुरनेलियुस के साथ तुमने खाना खाया? With a humble mind, he said, बड़े विनम्र मन के साथ उसने कहा, God told me to go, I went. परमेश्वर ने जाने कहा, मैं चला गया। Thank God they accepted that. और परमेश्वर धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार किया। The story did not end there. और कहानी वहां खत्म नहीं हुई। I want to tell you that you are in the plan of God. मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर की योजना के निमित्त हैं। One day one problem came to the church of Antioch. एक दिन अंताकिया की कलीसिया में एक समस्या खड़ी हो जाती है। The Gentiles came to the church. अन्य जाति कलीसिया में आए, They started worshiping the Lord. वो परमेश्वर की आराधना करना शुरू किए। But the Jewish people said that no, they cannot. लेकिन यहूदियों ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। And there was a great problem. वहां बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। Paul then took a decision to go and meet with the great leaders in Jerusalem. परमेश्वर के दास ने From Jerusalem leaders. और फिर वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि वो यरूशलेम के बड़े अगुओं से जाकर मिलकर इस विषय में चर्चा करेंगे। The so-called apostles are sitting there. अब सारे प्रेरित वहां पर बैठे हैं And they said that some problem is there. और वो कहते हैं कि अब समस्या है। The scripture says वचन में यूं लिखा है, most of the leaders, apostles, अधिकतर अगुए या प्रेरित जो वहां पर थे were trying to support that they have to follow the law of Moses. उन लोग ऐसा प्रयास कर रहे थे इस बात को दबाव डालकर कहने का कि उन्हें मूसा की व्यवस्था मानना है। Peter was not knowing that when God told him to go to that house
some reason is there. The Lord did not tell at that time. पतरस को नहीं मालूम था, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे उस घर में जाना है, क्या योजना है नहीं मालूम, उस समय परमेश्वर ने उसे नहीं बताया। When the Lord told him to cut it and eat it, जब परमेश्वर ने उसे मार कर खाने के लिए कहा, at that time also Peter was not knowing that. उस समय भी पतरस को नहीं मालूम था। When this problem came, जब ये समस्या खड़ी हुई, and he was also thinking, वो भी सोचने लगा, all the apostles were sitting. सारे प्रेरित बैठे हैं, They have to go through the Mosaic law अब तो उन्हें मूसा की व्यवस्था मानना है, because they are, even though they are the disciples, but something was there. I will explain that one. भले ही वो चेले थे, प्रेरित थे, लेकिन वहां पर कुछ बातें थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। Holy Spirit worked in the heart of Peter, पवित्र आत्मा ने प्रेरित पतरस के मन में काम किया, reminded him, उसे स्मरण दिलाया, stood up खड़ा हो गया, and said, कहा, one day एक दिन God sent me to the house of Cornelius. परमेश्वर ने मुझे कुरनेलियुस के घर में भेजा। The Lord did not show partiality. परमेश्वर ने पक्षपात नहीं दिखाया। He poured out the Holy Spirit as we received the power of the Holy जैसे Spirit. हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, वैसे उसने भी वहां पवित्र आत्मा की सामर्थ को We दिया। cannot make any barriers. हम कोई अवरोध नहीं खड़ा कर सकते। The lesson we learn. जो पाठ हम सीखते हैं, Even Peter was not knowing that why God was sending him to the house of Cornelius. यहाँ तक पतरस को भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर क्यों कर उसे कुरनेलियुस के घर में भेज रहा It है। was a great plan. ये परमेश्वर की बड़ी योजना है। When Paul was there in Damascus, जब पौलुस दमिश्क में था, there was a servant of God to go and give the good news to him. वहां परमेश्वर का दास था कि जाकर उसके भली खबर सुनाए। And he went and said that, oh, the brother Saul, God sent me here. You come. उसने कहा, भाई शाऊल, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, तुम मेरे साथ आओ। Was there anybody else there in that the house of, near the house of Cornelius? क्या कुरनेलियुस के घर के पास कोई और था? But it was God's plan. लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी। Peter should go there. पतरस को ही वहां जाना है। We are here according to the plan of God. परमेश्वर की योजना के निमित्त हम यहाँ पर पाए जाते हैं। God has a great plan for each and every one of us. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। And the lesson we learn. और जो पाठ हम सीखते Don't हैं, think that why we are spending this much time here in this Bible college. कभी ये ना सोचे कि इस बाइबल कॉलेज में आप इतना समय क्यों जाया कर रहे हैं। Don't think in that way. कभी इस रीति से आप ना You सोचिए। are here with the plan of God. आप यहाँ पर परमेश्वर की योजना के निमित्त हैं। He will show you His plan step by step. वह कदम दर कदम अपनी योजना आपके सामने प्रकट करेगा। Do not fear because of the threatening. और धमकी घुड़की की वजह से आप भयभीत ना हो, Do not fear about the secret schemes of devil. और शैतान के गुप्त चालों से आप भयभीत ना हो। And we may come to know that some schemes are going on. और हमें मालूम चलेगा, हो सकता है शैतान षड्यंत्र बना रहा हो। Do not fear. आप भयभीत ना You हो, are chosen by God. आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, You are covered by the angels. आप स्वर्गदूतों के द्वारा घेरे गए हैं। We can see the ministry of the angels. हम स्वर्गदूतों की सेवकाई को, उनकी सेवा को देख सकते God हैं। will send His angels there. परमेश्वर अपने दूत को आपके यहाँ भेजेगा And He will tell the angel, go and such a person. और कहेगा, इस व्यक्ति विशेष के पास तुम जाओ। She is crying and he is crying. वो रो रही है, वो रो रहा है, And he is fearing and she is fearing and he is और fearing. वो भयभीत है, वो भयभीत है। The angel will come and say that fear not. स्वर्गदूत आकर कहेगा, भयभीत ना हो। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God we have. क्या ही अद्भुत परमेश्वर हमारा He है। has chosen me. उसने मुझे चुना He है, has chosen me. उसने आपको चुना है, He will not forsake वो you. आपको छोड़ेगा नहीं। And this year take a decision. इस वर्ष में आप एक निर्णय को ले लें, We will be the children of God. आप परमेश्वर के संतान बनेंगे, Obedient servants of God. हम परमेश्वर के सेवक बनेंगे। And we will see wonderful works of God. आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। Lessons after lessons are there. That's all. पाठ के ऊपर कितने पाठ प्रेरितों काम पुस्तक में है। Thank God that God gave inspiration to Reverend Jose to give me today's chance. आप परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने प्रेरणा दिया रेवरेंड जोस वर्गीस को कि आज का संदेश मुझे देने के I लिए will not कहा know जाए। when he will inspire me. अब मुझे पता नहीं फिर कब परमेश्वर उन्हें प्रेरणा देगा। Some more lessons are there. कुछ और पाठ आपके लिए हैं, Believe this. आपको इसकी आवश्यकता है। Believe that. विश्वास करें, And believe that we are the children of God. याद रखें कि यह हम परमेश्वर की संतान हैं। God will use us परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा if you believe यदि आप विश्वास करें। according to that faith. विश्वास के अनुसार, According to that faith, उस विश्वास के अनुसार we have to say hallelujah. हमें हालेलुया बोलना है। We can say hallelujah. आप बोले हालेलुया। If you say hallelujah, then you come to know that we believe. यदि आप हालेलुया बोलते हैं, आपके बोलने के तरीके से मालूम चलेगा आप कितना विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise God, may God bless. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबों को I give glory आशीष and honor to देने my वाला beloved God. सारा आदर महिमा अपने प्रिय परमेश्वर को देना Thank you, चाहूंगा। Lord.